Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I'm very happy to be here at the Lahore College. मुझे याद है when I used to be studying in Kaned, तो हमारे plans बनते थे कि हम लाहौर कॉलेज में आए क्योंकि उनकी कैंटीन बहुत अच्छी थी. So today I'm very happy to be in those students. So first of all, thank you. So I would like to start with thanking SSDO, especially Sayyid Kausar Abbas. उन्होंने हमेशा से in many like 2-3 tenures have made conscious effort on not only climate change but a lot of other issues also. So thank you SSDO for arranging the Punjab Summit on climate change today. Then I would thank the Climate Optic documentary. And आपने बहुत अच्छा, I forgot your name, but the example you said that you're like 6 foot tall, and example setting with the universe, it was excellent. So I would want to thank Climate Optic. Then our guest of honor, Her Excellency Clara, you made an excellent point. And I'm glad that the government, the British government has always been supporting Pakistan on all the national causes. I would welcome Sara Ahmed. She's working very well with the Child Protection Bureau. Ms. Uzma Kardar, she's a member of the Punjab Assembly with us. Thanks to Dr. Shagufta Naz for being here today. And Dr. Aisha, thank you very much. Uzma Qureshi, she's not a doctor, and welcome to you. And especially I would like to welcome the students from the University of Punjab. The Women University of Multan. Fatma Jinnah Women University Rawalpindi. And the Lahore College students. And all the teachers, faculty, and the dean, welcome. So climate change एक ऐसा issue है जो अचानक नहीं होता. ये एक मुसलसल अमल है. और मैं अभी यहाँ बैठे हुए सोच रही थी अगर मैं कोई शेर याद करूँ तो वैसे I am not that good in Urdu, but I thought I'd think of something. कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता. So it's a constant change. Climate change is a constant change. It's not something that happens अचानक. So I think we all need to start thinking about it. और अगर हम देखें कि 2010 में जो flood आया था, that was the first time we lost lives, we lost property. And we started thinking about climate change. अगर हम देखें तो Pakistan is one of the countries which is most affected, 10th most country which is most affected by climate change. हालांकि हमारी contribution climate change में उतनी नहीं थी, लेकिन Pakistan 10 most affected country in the world by climate change. अगर हम पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं वो टेम्परेचर की वजह से मेल्ट होते जा रहे हैं. इसी तरह अगर हम 2018 में देखें तो जिस तरह स्मॉग लाहौर में स्पेशली इंक्रीज हो रही है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम लोगों को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग, यहाँ तक कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, स्कूलों को बंद किया जाना पड़ता है. तो सबसे ज़्यादा लाहौर स्मॉग से अफेक्ट हो रहा है. इसी तरह अगर हम रिसेंटली देखें तो 2022 में जिस तरह फ्लड आए, पाकिस्तान में हमारी जो इकोनॉमी है वो 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी चैलेंज बन गया पहली दफ़ा. और मैं देख रही थी कि 2022 का जो फ्लड है उसको कहा जाता है बिब्लिकल फ्लड. मतलब ये एक कहानियों में आता है, जैसे बाइबल की कहानियां, किस्से कहानियों में आता है. एक ऐसा फ्लड था जो कभी एक्चुअली इंसानों ने देखा नहीं.
इसी तरह अगर हम रिसेंटली देखें, अभी आपको पता होगा कि गल्फ में, दुबई में जिस तरह बारिशें हुई, फ्लडिंग हुई, हम देखें कि केपीके में या बलूचिस्तान में जिस तरह तूफ़ानी बारिशें आईं, या बांग्लादेश में जिस तरह हीट वेव आई अप्रैल में, या मालदीव्स में जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि वो कंट्री का लैंड जो है वो कम होता होता जो सी एरिया है वो उसको इनगल्फ कर रहा है। तो ऑल ऑफ दीज आर क्वेश्चन मार्क्स फॉर अस। तो हम अब क्वेश्चन बनता है हमें एज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हम क्या कर सकते हैं, हम एज स्टूडेंट्स ऑफ द यूथ क्या कर सकते हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो यूथ है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूथ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी हैव 60% पॉपुलेशन ऑफ द यूथ। तो व्हाट वी कैन डू, तो चैलेंज आता है कि हम इंडिविजुअल स्टेप्स भी ले सकते हैं, हम कलेक्टिव स्टेप्स विद द एनजीओज और सोसाइटी, स्कूल्स के साथ भी ले सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आती है। इसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट। बिल्कुल क्लारा ने ये बहुत अच्छी बात की कि सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ और मरियम औरंगजेब ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि प्लास्टिक को रिड्यूस करना है। इसी तरह हम देखेंगे 2-3 दिन पहले हमारी वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बाइक्स इंट्रोड्यूस की, और मुझे अच्छा लगा कि कल वो स्टेडियम में मेट्रो बस पे गई। तो ये भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने में एक अच्छा इक़्तिदाम है। अगर हम ब्रिटिश में देखें या लंदन में देखें, all of us are told to use public transport, या all of us are told कि हम बाइक्स यूज़ करें, वॉकिंग करें, क्योंकि इससे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इलेक्ट्रिक बाइक्स इंट्रोड्यूस कर रही है तो उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस होएगी। एंड लास्टली, जैसे हम सोच रहे हैं, गौर हो रहा है कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल सोलर पैनल्स, हम घरों को, हम प्रोजेक्ट्स को, हम स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पैनल पे, विंड हाइड्रो पैनल और विंड एनर्जी पे करें। जैसे डैम्स बनाने पे सोचें, बिकॉज जिस तरह इंडिया ने भी बहुत डैम्स बनाए झेलम पे, चिनाब पे, तो हम एज पाकिस्तान भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे, इसी तरह सोलर पैनल्स पे और विंड पे। और रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, अभी हमने देखा भी होगा कि हमें भी प्लास्टिक बैग्स को रिड्यूस करने की एक अवामी मुहिम भी चलाना चाहिए। मुझे याद है बचपन में जब हमारे वालिदैन होते थे तो वो कई दफ़ा ग्रोसरी करने जाते थे तो वो एक थैला लेते थे, थैला लेके जाते थे ताकि जो डिकम्पोज हो जाए वापस जाके ज़मीन में। प्लास्टिक एक्चुअली डिकम्पोज नहीं हो सकता, और अगर वो डिकम्पोज नहीं हो सकता तो वो समुंदर में जाके भी तो हमारी मछलियाँ उनको खा लेती हैं। तो वो हमें उस विजन के साथ सोचना, हमारे बच्चों को सोचना इस वक्त ज़रूरी है। इसलिए हमारी जो यूथ है वो एडवोकेट ऑफ चेंज है। आज हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि हमने यूथ को एजुकेट करना है, हमने अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में भी क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस करनी है। तो ये एक बहुत अच्छा इक़्तिदाम है कि क्लाइमेट चेंज के अंदर हम यूथ को अवेयरनेस कर रहे हैं। तो आपका इंशाल्लाह मैक्सिमम सपोर्ट की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसीज़ और इम्प्लीमेंटेशन हाईएस्ट लेवल पे होएगी आपको इसमें हेल्प करने के लिए। थैंक यू।